With the reason we say what? Because. Justification. Then we conclude. Conclusion क्या? Life is. आप नहीं समझोगे, ये हिंदुस्तान है, ये दरभंगा है, ये बिहार है, ये पटना है, ये महाराष्ट्र है. Life is, which is called resignation. Resign. We resign. End of story. And then we say we are living life. So my life is all about resignation, conditioning, reasoning, because I have said no. Say yes to life. When you say yes to life, what is happening? What opens up? Possibility. Everything is? So every problem has a solution. But do you want to deal with the problem? Or do you want to say, I want to live with the benefit? I'll just make a chart for you. Down. Just come this We have two angles of thinking. We human beings have two angles of thinking. This is life. This is me. Huh? Now, here comes problem. To the left comes problem. What do we do when we think of a problem? When you think of a problem, what do you do? You go to the solution. Like Navinji said, every solution has what? Another problem. Then what do you do? Then what happens? And then what? So this is a chain of causing problem against solution. This is one way of thinking. And you will become what? Problem solving machine. Now this side is an opportunity. Opportunity. When you say opportunity, what comes next? Possibility. New possibility. Benefits. Possibility. Benefit. Most of you are like that. Coming here today, you took it as an opportunity. And many of the people whom somebody has taught do not take that.
This opportunity, as if you have taken that opportunity, there is a certainty of possibility and benefits. The question is, what follows with benefit? New learnings, growth. Growth. Now, one is that side, one is this side. Which one do you choose? एक problem आता है, whole thing is about race. We see when we see problem on the face, it's fear, frankly. So you don't see an opportunity. See, it's a big risk. डर जाते हैं. Mainly that नहीं तो if everything is certain, I know that sometime opportunity है, I'll directly jump in. Right. So that is Fear. fear. Yeah. Okay. So what stops you in your life is Fear. fear. Good. Is it real? And uncertainty. Is it real? There is nothing certain. This fan can drop on you and you get to drop dead. There is no certainty. Fear, F for fantasized, E for experience, A for appearing, R for real. Fantasized, experience, appearing, real. ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, 3 दिन नहीं रहूंगा, काम धंधा रुक जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, फिर अगले मंथ का चेक बिल ये वो लंपन. So these are all fear. In fact, this is major breakthrough I got from this training. Yes. Can I quote a real life example? Certainly. Sure, please. Come ahead. You know, which are the two strongest brand names in the world for washing machines? IFB. Strongest brand name in the world. LG. Yeah, there's a lot of Indian history, but the two strongest brand names in the world are American. Pepsi, Coca, or something like that. Washing machine. Washing machines. Okay, washing machine. One is GE. Second is the one I have at home. I forgot the name. Washing machine. American washing machine. Virtual. That's also American, IFB is not. but not the Indian kind. It's American. Okay, both. Cutting edge of technology. They were selling in China. And they expanded the market because China, even the rural areas, lot of prosperity has developed. तो उन्होंने बेचना वहाँ शुरू किया. They sold it. वो सर्विस में lot of complaints were coming कि वो जो exit pipe है washing machine में उसमें गंदगी जम जाती है. तो the Americans said we have done the study, we have done the project report and all that, and they are misusing it. Now the fellow who went to check, he was a Chinese. He was working with an American company. He went to the farmers to explain and all. Then he found that in the washing machine they were washing vegetables. Potatoes. Potato is the biggest crop. तो आलू वॉश करते थे वॉशिंग मशीन में, तो उसमें से जो ये मट्टी है निकलेगा. So he came back and reported कि भाई आप ये लोग ये कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि then it is their problem, no, it is not our problem. Okay. So ये चाइनीज बंदा जो था वो वापस आया. He says, I look at it as a opportunity. He made a washing machine which can not only wash clothes, it can wash potatoes also. Then he went for another round, and now he has produced a washing machine which can wash clothes, which can wash potatoes and peel potatoes. Okay. This is higher. It is one of the fastest growing brands in the world today. You know, suddenly when he mentioned this came to me. You know, This is an example of opportunity.
Where the people are finding problem, it is This man the found a soil simple. is- He is not a highly educated businessman or something. His focus was very clear. And this is how ideas. Great. But how many of us know that in Punjab, they are the largest consumers of washing machine? Whether for the same reason or what? I don't know the reason, I'll tell you the reason. But how many of them know? No. I didn't. I also. This is first time we are hearing. Huh? Where They use it the only to make lassi. Make lassi. Yeah, lassi. washing machine. Yes, Washing machine. What lassi? It is not washing machine, it is only churning machine. Churning machine. So you use it as washing machine, they use it as churning machine. दही डाल दिए, हर एग्जिट में निकाले, लाओ। Good one. वो एक सीजन यूज किया, फेंक दिए। Okay. So when I was bachelor, I used to make everything in rice cooker. What is the electric rice cooker? That is only made for the rice. You can make their rice. But I prepare everything: vegetable, dal, and khichdi, and chai, and everything. It's a very simple thing. If you see the opportunity, you see the benefit. But if you know, see when you the did that, when there was fire under the bomb. Necessity is the mother of invention. There was necessity, something has to be done, and so you caused it. Normally, we won't do it. तो सोचो हम लोग ही खुद कितने कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके अधीन नहीं है, नो के अधीन है। अगर यस में जाते हैं तो क्या 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 प्राप्ति कर सकते हैं, यस में जीते हैं। और नो में रहते हैं ना तो बिलीव मी इतना दिमाग लगाते हैं, मैं ये भी सोचूं, वो भी सोचूं, वो भी सोचूं, वो भी सोचूं। बैठे कहाँ है? गणपति की तरफ। And no में सबसे बड़ा चीज fear आ रहा है ना. One of the biggest thing is fear. What बस stops ये you? हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा. All are fantasy, all are fantasized experience appearing real. ऐसा लग रहा है कि यही हो जाएगा. For example, the moment हालत तभी खराब हो जाती है, पसीना तभी अभी से आना शुरू हो रहा है. That's Right the- now I am thinking about going That's to the- USA and मेरे पसीने आना शुरू हो गए. The fear has started gripping. अभी क्या होगा? घर में बच्चों को कौन देखेगा? My wife is in Patna. She is professor there. So she has to come to take care of children. Then only I can leave. So what to do for that? Then fear is about एक तो वीसा वाला इन्होंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, ठीक है. $1 weakening. डॉलर ओके वो ज्यादा नहीं है, मेजर नहीं है वो, ठीक है. Another is can be like wife will not agree to leave the job or That is the problem. that is a bigger problem. So that fear is coming. He will say, what, why now? Let us go all together. And then you have a bigger problem. I can go, I can do my business and come back faster. Together, okay. Then the expenses. Another fear is coming. देखो, Now all so this, he said going to the US. all these fears are coming. All the fears are coming. Reasoning, justification, why no? There is no yes, why yes? इधर का काम का क्या होगा? जो भी है, ये भी जो है ना, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ? It's all The second company is excuse and That's what you say. हाँ जी? Whirlpool. Whirlpool, yeah. We are the biggest churning machine. Out of the washing machine. We only churn. लेकिन एक बात है, हर fear के पीछे ना का intention क्या है? Fear के पीछे सिर्फ ना का intention है. Fear का माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? नो का एक्सक्यूज. नो को जस्टिफाई करते हैं. बढ़ावा किसको देते हैं हम? No go. जिंदगी को नहीं. ना बोलने की जो क्षमता रखते हैं ना, उसको बढ़ावा देते हैं. मैं अंधेपन में बहुत कुछ कर चुका हूँ 2 साल के. कभी भी मेरी जिंदगी रुकी नहीं, स्लो हो गई.
I was blind for 8 months. तो ना जितना बोलेंगे हम उतना फियर को बढ़ाएंगे, और जितना फियर को बढ़ाएंगे उतना जस्टिफिकेशन कराएंगे, उतना कारण देंगे, उतना बहानाबाजी करेंगे, जिसको पेंतरेबाजी करेंगे। तो बदलना क्या है? Say yes to everything. The minute you say yes, you are willing to take risk. Fear, देखो ये जो है ना, अगर इसको रिस्क बोले तो आप है ना सब दुनिया भर के नो के रिस्क, यहाँ का अगर रिस्क बोलोगे ना क्या होगा? What worst can happen? If you are willing to confront the worst that can happen and still say yes, you have won the game. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा क्या होगा? That's all. लिखो ना, कोई भी एक ऐसा इशू लिखो जो आपको खाया जा रहा है और उसके लिए कोई वास्तविक आपने कुछ कदम ही नहीं उठाया। आज अगर वो कदम उठाना है तो वर्स्ट सिचुएशन क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो लिख कर देखो और आपको पता चलेगा कितने बेतरीबाजी हम करते हैं। हम ही अपने कदमों को हम ही अटकाकर हम ही कहते हैं यार ऐसा हो जाता है, वैसे हो जाता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, वो सब आ जाता है। इनहेरिटेंस कॉन्वर्सेशन, सोशल, फैमिली, ये सब। सच बात होता है कि आपके ग्रोथ में फैमिली को कितना उन्नति मिलता है इसके बारे में नहीं सोचते। इनको कितना बुरा लगेगा ये सोचते हैं, क्योंकि हमें नहीं करना है। ना का आधार में सब कुछ बहाना है, हाँ के आधार में सब कुछ मुमकिन है। In the philosophy of no, we have only reasons and excuses. In the philosophy of yes, we only have benefits and opportunities. सबसे बड़ा डर क्या है, right? What is that? The biggest fear. Fear right now is gripping you. Okay. If you have written, you can share. Level 2 in May. Inside my every time I fear of failure in that exam because of not giving enough time for preparation. That's a fear, right? Where is the exam? May 17. Thank you for sharing. Yes. What's the fear? Yes, Ajay Babu. क्या डर है? डर यही होता है सर, जिससे भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, कंपनी बोलेगी ये करना है, ऐसा करना है, तो एक डर तो ये होता है कि कभी कभी कंपनी बोला जाता है कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो हो सकता है ये एज ए पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो अपने दिमाग पहले आ जाता है कि अगर नहीं हुआ तो ये पेनाल्टी देना पड़ेगा, तो ये डर होता है। वो डर की वजह से और जो होना होता है नहीं हो पाता है। Thanks for sharing. Yes, Rahul. डर ये है कि how will I grow in my life? अभी तक भी नहीं, उसमें डर नहीं है, तो क्वेश्चन है। डर बताओ, डर क्या है? Whether I मतलब मैं ग्रो नहीं कर पाऊँ, is it sad or what have you written? Go for it. Huh? I am not written. So think of it. What is the fear? Yes, Narendra. I think that my fear is that opportunities are there in metros, but my biggest fear is my family. I will be away from my family. So I'm thinking that to hold up that opportunity or be with my family.
Yes. How to have both? Yeah. Whether we will have, whether I will have both. दोनों नहीं हो सकता, ऐसा कुछ माइंड में। हाँ चलते रहते हैं। Not sir. Yes sir. झा साहब। सर एक्चुअली हम ट्रेडिशनल सिचुएशन को तोड़ नहीं पाते, इसका भय अंदर से रहता है और कुछ ऐसा ही समस्या नहीं है। हाँ मुझे याद है एक सीतामढ़ी एरिया है ना, मिथिला एरिया। I am also born there, brought up in Jamshedpur। तो मिथिला में हमारी जहाँ शादी हुई है कसरा, वहाँ पे ज्वालामुखी भगवती जी का ये स्थान है। तो शक्ति की जो बॉडी के पार्ट्स गिरे थे अपने शास्त्र के मिथ के माइथोलॉजी के हिसाब से, उसमें एक भगवती जी का पार्ट वहां भी गिरा, ज्वालामुखी देवी का। तो मैं अपने साले साहब के जलों में गया था, तो देखा कि वहां बकरी को काटते हैं, बकरी खस्सी जो भी होता है। तो हमने अपने ससुर जी से बोला ये सब बंद करवाइए भैया, कब तक इनकी जान लेते रहिए और बच्चों की जान लेते रहिए भगवती जी के नाम पर। अंग्रेजी को वो ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा तमाशा, इतने सारे मीट खाना है तो भगवान के नाम पे काटे जा रहे हो। Where is it written कि भगवती जी को चाहिए चाटो? Where is it written? तो ट्रेडिशन जैसे है, उस ट्रेडिशन को तोड़ना इतना मुश्किल होता है। It's not so easy. I know that because nobody raises question. Are you getting it? तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जब ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, आपके माइंड में दूसरे एग्जाम्पल होंगे। यस, आप अपने एग्जाम्पल शेयर करें। कौन से ट्रेडिशन को आप तोड़ना चाहते हैं, तोड़ नहीं पा रहे? एक्चुअली जैसे अगर हम मेरे परिवार कोई वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो या जो भी हो, अब हमको उसे हट के करना है। यही पे एक दीवार वाल नजर आता है। जैसे अब लोग क्या कहेंगे, दीवार को तोड़े को हम ही क्यों तोड़े? दीवार को तोड़ क्या करना चाहते हैं? तो कुछ भी जैसे आपके लिए क्या है? तो जैसे हम चाहते हैं जो समाज सेवा ही करे। तो उस सवाल आ रहा है, यार ये समाज सेवी हो गया, हाँ, जब मैं उसको तो 18,000 हो गया ये, या क्या इस तरह का समाज में बोलने लगेगा? निश्चित ये तो बुर्बक हो गया है। गांव की भाषा में समाज सेवा करने निकला है। अरे जमींदार को जमीन भी है अपना, काफी है। सोचो जमींदारी है, तो जहां ये समाज सेवा करने का बुर्बक है, लुटा बाप दादा की अर्जित संपत्ति को लुटा रहा है। Can you understand? No, I understand, but I can't relate. We cannot relate because we come from the गाँव में you may not have lived in village, right? वहाँ पे विलेज में तो कितना जमीन होगा आपका? लगभग 50 acres। एक बात बोलता हूँ, वी कम फ्रॉम बॉम्बे। हम अगर बोले कि हम अपने पेरेंट्स को बोले कि हमको सोशल वर्क करना है और गलती से भी मम्मी डैडी ने ना बोल दिया कि नहीं करना है, अगर रिलेटिव्स ने बोल दिया तो उनको तो मारेंगे। माँ बाप को तो दूसरा के बोलेंगे क्या है, बच्चे को ये भी नहीं करने देते, कुछ करने नहीं देते बच्चों को अपने। सोशल वर्क करना हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम है। हमको तो बोला जाता है घर से जाओ करो, ऐसा ये है रूरल एंड अर्बन। रूरल एंड अर्बन एक्चुअली यही फियर भी है, ये अलग अलग फियर है। यही बात है, इसका फैक्ट बात है। This is the divide in urban and rural. And similarly, आप देखेंगे 50 एकड़ जमीन, हाँ वो 50 एकड़। मुंबई में ये यदि बोल दें 1 एकड़ जमीन है, कोई मारेगा नहीं, मारने का ही सारा मालिक सुन को राइट। और फिर भी नहीं समाज सेवा करना चाहते, हम तो हंसेंगे 50 एकड़ होने के बाद भी। अंडरस्टैंड? तो ये परंपरा को आप तोड़ना चाहते हैं और तोड़ नहीं पाते क्योंकि लोग हंसते हैं। लोग क्या करेंगे, राइट? और क्या डर है आपका राजू? क्या डर है? डर बोलिए आप। कुछ तो होगा। नहीं, क्या डर क्या है? भीती आहे, भय। चला ये उठो ये ना।
शिक्षक तू सांग लोकांना तू काय आहेस तुझं हाँ करो डर लगता है ना? अब तो दूर हुआ, अब आगे बोलो। अब बोलो, ये वाला डर तो हो गया, दूसरा डर का बात बताओ। जब कोई पर आता है तभी बात करने में थोड़ा डर लगता है। अभी वहां क्यों खड़ा किया तुझे? इसलिए कि मुझे बात करनी है। सीधी बात है। नहीं नहीं, आपको डर नहीं लग रहा, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कैसे कर रहा है? नहीं, अभी बात किया तो क्या हुआ? कुछ थोड़ी होता है, ये सारे डर जो है झूठे हैं, सच्चे डर नहीं है। तो जितने भी हम लोग डरते हैं कि समाज सेवी हो जाएंगे तो ये डर होगा या कुछ भी जो करते बहुत हैं, सारे वो सारे डर झूठे हैं। ये मेरे को नहीं मालूम था, ट्रेनिंग से पहले मेरे को नहीं मालूम था कि ये सारे डर जो है वो झूठे हैं। उन्होंने बोला एक दो डर सच्चे हो सकते हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने बोला यदि लोडेड गन आपके टेम्पल पे रहेगी, फोरहेड पे यदि लोडेड गन हो तो डर सकते हैं आप। दो किस्म के डर है, एक जान का खतरा, दूसरा बेफुजूल। दूसरा बेफुजूल हाँ, लोकांना सांग काय सांगायचं काही सांग. तुझं भीती आत्ताच काढायचं आहे. How many of you know he's a teacher? He's getting trained to be a teacher. सांग सांग. नाही काय आता सांगायचं ट्रेनिंगला आलास तो तुमच्या नहीं वो बोलेगा, वो ट्रेनिंग के लिए आया, उसको ट्रेनिंग किए तो हम जिम्मेदार रहेंगे क्या? इसका ट्रेनिंग अब है यही है। चलो नहीं तो मैं डरा मत चल बोल 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 नहीं बोल जानकारी होना चाहिए। अपने ही बारे अपने बारे में बताइए, हमें कैसे आपका नाम क्या है? कॉलेज में फिर से बताइए, हम क्या करते हैं, क्या करना चाहेंगे? मेरा नाम है राजू, पूरा नाम राजू संभाल लिंगनवाड़ है। मैं यहाँ पे रहने वाला, महाराष्ट्र में नांदेड़, उसमें छोटा खेड़ा गांव का है, खेड़ा है, मुखेड़ बोलते हैं। तालुका पोस्ट मुखेड़ है मेरा, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ है। बचपन से मैं ब्लाइंड नहीं हुआ, जो थोड़ा 4-5 साल का था तब मेरा हाथ खराब हो गया, तब से मैं ब्लाइंड पूरा हो गया। 6 साल का था तब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए मेरा पिता मम्मी ने भेजा था स्कूल में। तब से मैं स्कूल में 1 से 12 तक पढ़ाई किया। तो थोड़ा मम्मी पापा को थोड़ा ब्लाइंड हो रहा है, इसलिए थोड़ा ये हो रहा था। पर बाद में मुझे ये स्कूल में कैसा पढ़ना है वो सब टीचर ने सब बताया मुझे, इसलिए आगे से पढ़ाई मैं जारी रखा। अभी मेरा कंप्लीट 12 हो गया है और अभी मैं डिप्लोमा जो बोले तो स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ मैं। उसमें जो ब्लाइंड होते मैं जैसा टीचर के हाथ से पढ़ाया, मैं ऐसा मेरे जैसा समझो मैं दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ। आपके टीचर का नाम क्या है? संस्था का नाम क्या है? अच्छा हाँ, मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ का टीचर का नाम है केविन बोल के, केविन सर बोल के है, वो वहाँ का कोऑर्डिनेटर है। और एल सर बोल के है, ये और ब्लाइंड है टीचर है, रवि सर बोल के है। तो रहने वाले सबको बेंगलोर में है, मैं बेंगलोर में पढ़ाई करता हूँ। चश्मा कब लेगा आप? हाँ हेलो लेने वाले सर
कब? आज है कितना तारीख? आज 7th है। कब ले लेगा? नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा ना सर। नेक्स्ट टाइम नहीं, डेट बताइए। हाँ, आज 7 है। नहीं 9 को भी दिखाऊंगा सर। 9 तो रात हो जाएगा घर जाते जाते। नहीं आने वाला है फ्रेंड, उसको लेके आने का बोला मैं। 9th को? हाँ 9th को हो जाएगा। चश्मा? यस। गुड। अभी भगवान मुझे बाजू क्या भय क्या है? भय है? आगे आगे कुछ नहीं। हाय शाबाश। तो क्या है, जब वहाँ बैठा था स्टार्टिंग में सर थोड़ा बात करने में ये होता है, पर बाद में जो बात करने में लगता है हाँ। फिर डर सब चला गया। अभी बात करेगा ना, ये बात करेंगे। तो डर गया ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ डर है, जिस सीट से खाली करते हैं तो वहां से डर निकल जाता है। उसको छोड़ो, चलो। थैंक यू। कैन यू गिव देम अ बिग हैंड? डर जो है वो हमें इस तरह से जकड़ के, जैसे ये डर हो, ये हमें रोक के रखता है ऐसा माइंड में। फैंटासाइज एक्सपीरियंस, मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई, क्या करूं, कैसे मैं उधर जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस आदमी को बोलूंगा TMBA ज्वाइन करने के लिए, तो वो ना बोल देगा। डर, मेरे को तो इज्जत ही चला जाएगा। डर, तो उसको मैं यदि अपना दवा बेच दूंगा, वो बोलूंगा, उसका बोलेगा ना कि आपका दवा ठीक नहीं है, मेरा तो इज्जत चला जाएगा, मेरे को इतना समय बर्बाद हो जाएगा, मेरा ये सारा डर, पेनल्टी लग जाएगा, राइट? ऑफिस में एक डर ये रहता है जिससे हम लोग को एक्टिविटी करने को मिलता है। जब एक्टिविटी करेंगे तो कंपनी को तो रिटर्न चाहिए ही, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट भी दिए या कैश दिए, वो लेने के बाद भी नहीं बिजनेस देते हैं। नहीं देंगे, ये तो डर हो गया ना। तो उसमें क्या, अभी चूंकि 1-2 बार हमको ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, 2-4 एक के साथ हुआ, तो चलो फिर हम सोच रहे हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी मिला है, दूसरे के पास जरा आजमाते हैं, तीसरे के पास। अगर 20 को किए उसमें 4-5 ऐसे कर दिए, तो ये फिर डर हो जाता है कि पता चला कि अभी ये तो कंपनी पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? आप भाई किसको दे रहे हो? दे भी रहे हो, बिजनेस भी नहीं आ रहा है, तुम अपने पास तो नहीं रख रहे हो। तो वही हाल है कि ये तो कंपनी को लुटा रहा है। ये बात डर है। तो क्या है, तो ये डर का क्या टाइटल होगा? ये डर का टाइटल क्या होगा? इसको एक नाम दो। ये आपने समझा, बहुत अच्छा समझ गए हम लोग कि आपको डर है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? फियर ऑफ। किस बात का भय? लॉस। डर इस बात का होता है कि सपोज मैंने उसको जो कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके अगेंस्ट उसने हमको बिजनेस नहीं दिया, उस डर को क्या टाइटल दो? एनीबॉडी? इनसिक्योरिटी। इसके पीछे क्या है? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इनसिक्योरिटी? आई थिंक नेगेटिविटी रहता है। हाँ? नेगेटिविटी वो तो सबसे बड़ा समझ आता है। अगर आपने ये प्राप्त कर लिया, जिंदगी बन जाएगी आपकी। मैं कह देता हूँ जी, आप किसके पीछे डर, किस डर से बैठे हो पता है? उसके तो फियर ऑफ रिजेक्शन। और वो फियर ऑफ रिजेक्शन आपकी जिंदगी में हर जगह पे आपको नजर आएगा। हम अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते हैं? ताकि कोई मुझे रिजेक्ट न करे, चाहे वो मेरे कपड़े हो, मेरे मूछे हो, बाल हो, दवाई हो, चाल चलन हो, बोल वचन हो, कुछ भी हो। ये सब किसके पीछे हम डिजाइन करते हैं? इसके पीछे रहस्य क्या है? कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। फियर ऑफ रिजेक्शन। और आप पूछो दुनिया में किसी को, उनको फुर्सत ही नहीं है आपको रिजेक्ट करने की, क्योंकि वो भी अपने दुनिया में है, अपने अपने धुन में। आप खाना चलिए। फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों नहीं रहेगा सर? जब उनको किसी को एक बात कुछ दिए, वो हमको दिया भैया नहीं, मुझे ये तो बताओ, हमारे ऊपर वाला तो पूछेगा ना कि भाई एक मिनट, अभी चाहे नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो, क्या रिजेक्शन है?
कुछ अलग है? आप जो भी कह रहे हो, ऊपर वाले का भी रिजेक्शन आपको भय लगता है, नीचे वाले का भी भय लगता है, बीच में आप अटके हो, क्या कर सकते हो? नो पॉसिबल। आंसर इज नो। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? आप काम करेंगे तो डॉक्टर रिजेक्ट कर सकता है, और करके अगर वहां रिजेक्ट नहीं हुआ तो ऊपर वाला रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो वहां रिजेक्ट होगा इसलिए वो काम नहीं कर रहा है, और काम नहीं करे तो ऊपर वाला रिजेक्ट करेगा, और ये गलत काम हो गया तो ऊपर वाला रिजेक्शन आपका है। ऊपर कोई नहीं, नीचे कोई नहीं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, आप ही आप हो गया, क्योंकि ये आपकी कहानी है। भय, रहस्य क्या है? कहानी आपने कहा। अब आपके सामने के उदाहरण है, वो भय से वहां बैठा था, उसको वहां ले आया, भय निकल, एक्शन की बिना भय। भय को क्या, जब तक बैठे रहोगे तब तक भय आपको खाते रहेगा, जब तक हिलोगे नहीं तब तक भय का क्या? हिल गए तो भय का मतलब। What was your fear, रंगा साहब? आपका मेजर फियर क्या था? अभी मेरा मेजर फियर वंस अपॉन अ टाइम नहीं। अभी क्या? आज का फियर क्या है? आज का फियर मेरे पास अभी के लिए नॉट एन अनप्लेजेंट फील। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस क्षण में मुझे किस चीज का भय है, ये नहीं कहता हूँ, मेरे को नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। जैसे you know, for me one of the biggest fear is that कि my commitment is कि अभी इस महीने में मैं वो लैंड का रजिस्ट्रेशन करवा लूँ और फ्लैट एक बुक किया है वो रजिस्ट्रेशन करवा लूँ। इट्स अ बिग सम, अराउंड 4-5 करोड़ का मोटा मोटी प्लानिंग है। Now my fear is of missing the timeline. तो मुझे फिर टाइम लेना होगा या डिले करना होगा या you know, so my fear is will I complete the timeline? That's my fear. And if I don't complete the timeline, isn't it that everything is getting delayed? That's my fear of delay, fear of missing timeline, fear of losing the losing the brand that I'm making as a person of commitment. जो बोला तो हुआ, losing on that. So this is something I'm dealing with right now. What is that you are dealing with? Anything that comes up? No, not that I. Yesterday. Yeah, I'm fine. Yesterday, yes, the entire setup. Okay. And You can share something on that. अच्छा, कल जब मैं आया था, तो this place was a complete mess. जो लोग कमिटेड थे असिस्टेंट के लिए, वो कोई नहीं था, और जो एक असिस्टेंट था, उसका कमिटमेंट लेवल बहुत कम था, जिसको पूरा एफर्ट डालना पड़ रहा। और एक फियर बहुत कि भाई ये कल जो मैंने प्रॉमिस किया अपने आप के, भाई इम्पेक्टेबल स्पेस में एग्जिबिट कर पाऊंगा या नहीं, ये कल शाम तक मुझे क्लियर था। लेकिन शाम में जो कहा, मैंने बोला ये सब बंदरबाजी है, कोई हो न हो, मेरे में काबिलात है, मैंने कहा हाँ है, तैयार हो, हाँ हूँ, करे बिना मैं सोऊंगा नहीं, और वो कर बाद में सोया। तो I confronted the fear completely and completely got myself entangled into getting the job done. और ये कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं कि कोई मेरे सर पे गोली रखा है, ये मैंने अपना क्रिएशन है और मुझे ये कमिटमेंट है, और उसको कैसे फुलफिल करना, वो जोश। So he gave a word that this will be ready. This venue, because for last 5, 6, 7 days there was nobody. उसके पहले वाले सेशन में वहाँ पे थे, वो बंगलो में, तो वहाँ पे नहीं थे, तो there was a space. He was used to take care and ask people and all. This time 6, 7 days nobody was there. So naturally, when Ranga sir came, it was not as per his expectation. So fear came that whether and he has committed last time that it will be much better than
what we have encountered. It was his word. So fear was, oh, it's going worse than the last time. And then he has confronted that and made it happen. So even कोई भी व्यक्ति को fear होता है. So there is nothing wrong with having fear. ये नहीं कि कभी कभी हम लोग सुनते होंगे मेरे को डर नहीं होता, सर को डर नहीं. लाइक सर को डर नहीं, तो हम लोग को डर नहीं होता है. ऐसा हम लोग ऐसा सोचते हैं कि डर होना गलत बात है, रोना गलत बात है. ऐसा कुछ भी नहीं है. न डर होना गलत बात है, न रोना गलत बात है. डर को कितनी देर तक पालता हूँ उसके ऊपर मेरा अधिकार बनता है, डर को पालना. मैं कल की बात करूँ, कल सवेरे जब मैं निकला 7:10 को, भाई 7:50 को ट्रेन है, 7:10 को मैं निकल रहा हूँ और घर से बाहर निकला एक भी ऑटो नहीं. उस क्षण में मैं बोला यार आज कहीं ट्रेन तो मिस नहीं कर रहा हूँ. और ट्रेन मिस होने का डर उतना नहीं है, उतना ये कि नवीन को फिर परेशान करना पड़ेगा. बहुत कुछ है उसका कॉन्सिक्वेंस. एक मिस हो गया तो उधर फिर कोई दूसरा ट्रेन या फिर गाड़ी या कैसा करके और फिर इधर का सेटअप एवरीथिंग दैट क्रिएट्स फियर. और ये क्या है फंडामेंटल फियर. मैं आपको बताऊं कि भाई आई एम द क्लियरिंग कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम द क्लियरिंग. क्लियरिंग बोले तो क्या है, जो मैं करूंगा वही क्लास में होगा. ये मैं आधार करके चलता हूँ क्योंकि अगर मैं लेट हुआ तो क्लास में सब कुछ लेट हुआ. ये मुझे मंजूर नहीं है. तो ये भय से कि अगर मैं लेट पहुंचा तो सब कुछ मैनेज होता है, लेकिन वो नहीं है. तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाइएगा, जैसे जैसे बड़ा गेम लेते जाइएगा, आपका डर भी उस हिसाब से बढ़ सकता है. डर बढ़ने में कोई खराबी नहीं है. खराबी वो है कि डर को आप यदि अलाउ कर दें, अगर आपको जाम करके, उसका सिंपल है, ये डर सब झूठा है, इतना ही हल्का है. उसको केवल बोलना है ए डर तू इधर रह, थोड़ा देर रेस्ट कर, मैं जरा काम करके. आपको मैं कहूँ 7:10 को अगर मेरे को रिक्शा नहीं मिले तो मैं आधे घंटे में तो स्टेशन पहुंचा. मैंने कहा रिक्शा नहीं है. बोला क्या बात है, मुझे चाहिए, मुझे पहुंचना है या नहीं पहुंचना है. तो एक गाड़ी आई, हाथ किया, 2 लेडीज थे. मुझे बोले कहाँ जा रहे हैं. बोला मुझे जहाँ रिक्शा मिले वहाँ छोड़ दो. एंड शी वाज ड्राइविंग फास्ट. जैसे कि मुझे जल्दी है, मैं चुपचाप बैठा. बोले अंकल यहाँ छोड़ दो. छोड़ दो. वो रिक्शा खड़ा है. उतरा, रिक्शा में बैठा, 15 मिनट जल्दी पहुंचा. और वो उस क्षण के लिए जो डर आया तो उसको मैंने कितने सेकंड पर अंदर रखना है ये मैं चूज करता हूँ. अगर वो डर मेरे ऊपर हावी हो जाए तो मैं सब प्रॉब्लम्स को देखता हूँ. ये डर चलो राजू अगला. गाड़ी कहाँ से आई, और ब्रांड लो वैगनआर और लेडी ड्राइविंग, द मदर इज सिटिंग, दोनों बात कर रहे हैं, मैं पीछे आराम से बैठा हूँ. मेरे को छोड़ दी. बोले आपको यहाँ छोड़ दो. We discussed in the morning. Universe has perfect design. Perfect design. We get worried unnecessarily, and our worry is certainly there because we don't walk on truth. We don't walk on commitment. We don't walk. We are not in integrity. When these things are not there, naturally we get worried. So if we follow certain fundamental laws or fundamental principles of life, like truth, integrity, commitment, and it is not that you don't know this. All of us know this. Only thing, how much we are on that. Then we never get late. We never get, we never get those things which is not for us. We always get those things which is for our purpose and completion of that purpose. ये मैं खाली यही कहूँगा कि मैं डर को पालता नहीं, ना उसके हावी हो जाता. डरना अपनी फितरत में नहीं है, आपके फितरत में नहीं है. We are big people. So, any fear, Manish? देखो जैसे हम जिंदगी में शुरू करते ना
तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में चलते हैं, ये आपका रास्ता है, इसमें चलते हो तो गिरने का डर रहेगा। ये पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज है, इसमें गिरने का डर रहेगा? भय हो सकता है, इसमें भी भय हो सकता है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे ये लाइन इतना ही कम होते जाएगा, फिर बढ़ गए, फिर कम होगा। एक और टाटा जब इतने से पैसेज में जा रहे हैं, इसमें भी भय हो, लेकिन ये अपना टेस्ट है। The growth will always make it smaller, thinner. So safety factor में चलते हैं तो क्या होता है, इतना बड़ा बॉडी, वरना इतने में चलते एक कदम। जैसे ग्रोथ होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कमिटमेंट होता है, वैसे वैसे रास्ता छोटा होता है। वो भय का एग्जामिनेशन, क्या हो सकता है? मैं कहा क्या हो सकता है, मुझे कुछ नहीं तो थाना 10:35 को थाना पहुंचना है, अगर ट्रेन भी छूटे 10:35 को मैं थाना कैसे हाजिर रहूं, ये मुमकिन है या नहीं, ये मैसेज। So here he is talking about integrity versus sincerity. Like integrity क्या है? Sorry. Integrity versus sincerity. दोनों में क्या डिफरेंस है? What do you understand by integrity? आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा, इंटेग्रिटी वर्ड। कितने लोगों ने सुना है ये नाम? Raise your hand please. अरे सब लोग सुन लिए। This only खाली झांसा भी सुना है, चलिए बहुत अच्छा, आप लीडर है। इंटीग्रिटी को हिंदी में एक्ट डिक्शनरी में यदि मीनिंग देखा है, हमने इस पर बहुत मोटा सा डिक्शनरी लाया, लेकिन हिंदी में तो नहीं, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या? वननेस। यदि आप इसमें उल्टाएंगे इंटेग्रिटी का मतलब, तो ये कहता है इंटेग्रिटी का मतलब एसटी, integrity. The quality of always behaving according to the moral principle that you believe in, so that people respect and trust you. She had a reputation for honesty and personal integrity. Maintain, preserve your integrity. Trust, we as a nation will maintain our integrity and influence. Question, doubts, integrity. Nobody could question the government's integrity in this issue. The quality of behaving according to the rules and the standards of your job or profession. Professional, artistic, political integrity. These guidelines do not compromise the professional integrity of leaders. Formal. The quality of being complete or whole. The quality of being complete or whole. हम लोगों ने बात किया था सुबह में कि every human being is perfect, whole and complete. We are already that. In fact, every child is to at least that. उसके बाद हम ड्रामा शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में तो परफेक्ट होल कंप्लीट, इसलिए हम लोग बच्चे को कभी देखते हैं ना तो देखना चाहते हैं। कोई बच्चा एक लेडी यदि लेके जा रही हो, 6 महीने का बच्चा, यू कांट स्टॉप योरसेल्फ, नॉट लुकिंग एट दैट चाइल्ड। उस बच्चे को देखे बिना आप अपने को रोक नहीं सकते। हैज इट हैपेंड टू यू? In spite of all those things, your conversation, she will feel, like little awkward, but still you will have a glance of that kid. Why? See, integrity is the perfection, wholeness and completeness of the kid. And if only in these 3 days we become the kid, or we become the child, or childlike, we have accomplished transformation. So it says, the quality of being complete or whole without any missing parts, an obligation to defend the new state, okay, the quality of being in a good condition without any damage or mistake, without any damage or mistake.
the accuracy of the analysis depends on the integrity of the document. So integrity is wholeness, completeness, जो बोला वो किया. without mistake, no damage. These are some of the things which is written in Macmillan. Oxford has added another word, that's oneness. One. IP. In your body, mind and soul. Most of the time it is disoriented. Mind is somewhere, body is somewhere, soul we don't know where it is. So integrity is like oneness. Right? One. You and me. All are one. We and them. All are one. Nobody left. Including Raju. Yes, sir. Yes, everybody. One. Integrity. तो integrity अब सिंसियर आज तक हम लोगों को बच्चे में आई रिमेम्बर सर हमारा बच्चा कैसा है आपका बच्चा बहुत सिंसियर है बच्चा सिंसियर है अभी पता चल रहा है सिंसियर मतलब कोई बहुत खास चीज नहीं है क्योंकि इंटेग्रिटी में है कि नहीं पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था कि ये डिस्टिंक्शन हम लोग को मालूम ही नहीं था इंटेग्रिटी वर्ड मैंने 32 साल बाद सुना कमिटमेंट तक सुना था तक ये सब सुना था बहुत लेटली सुनना शुरू किया इसलिए आप जो अभी सुन रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं लग रहा सो सिंसियरिटी क्या है सिंसियरिटी मतलब हम लोग समझते थे कि काम अच्छा से करे जो बोल रहा है या वो करते हैं हार्ड वर्क कर रहा है मतलब सिंसियर है ऐसा करके माइंड में रहता है लेट अस सी व्हाट डिक्शनरी सेज आपके बच्चे जब आपसे पूछते हैं या पूछेंगे या पूछे थे कोई क्वेश्चन तो आपने डिक्शनरी खोल के उनको बताया था क्या हेलो हेलो बताया राइट दैट इज बेस्ट वे बिकॉज व्हेन वी मेक एफर्ट दे आल्सो मेक एफर्ट व्हेन वी डोंट सिंसियर टॉकिंग एंड एक्टिंग इन अ वे दैट शोज यू रियली मीन व्हाट यू से एंड डू He is a modest and sincere words, feelings, ways of behaving as true. I want to give a sincere word as a shit. Oh my God. I'm shocked. I'm shocked. So this is the invention that even dictionary has not captured for what we are teaching in translation. I'm shocked. Okay. It is not about shocking because when we are talking about transformational management and business administration, it's about that we are bringing in new kind of language, the transformational language in the existence, so as to increase the effectiveness. Clear? So it is nothing unusual. Sincerity, the difference between integrity and sincerity is that sincerity is the commitment towards action. Commitment towards action. Integrity is commitment towards Mohanji. What is integrity? Commitment towards Action. No, that is sincerity. Integrity is commitment towards result. कि मैंने एक्शन किया और छोड़ दिया और उसने बोला नहीं कैसे भी करके रिजल्ट आना चाहिए When Ranga साहब shared कि यार ठीक है ट्रेन छूट जाएगा लेकिन 10:30 बजे 10:35 में थाने में ट्रेन भी जाती थी तो 10:30 में पहुंचती थी 10:35 में और मैं दूसरा भी मेथड लूंगा बस लूं या टैक्सी लूं या कुछ भी 10:35 में he is in integrity. What actions he has taken is different thing.
Most of the time we get stuck to that. अभी ट्रेन हुआ ना तो ट्रेन से ही जाने का, नहीं गया ना तो नहीं जाने का, खत्म हो गया. Sorry, मैं नहीं आ पाऊंगा. I need to produce result. That's why integrity was many times we confuse between these two. We get stuck here and we never produce result. Because for result to be produced, integrity platform has to be created. We'll discuss more about integrity. In fact, if you can write down in your notebook, nothing works without integrity. So if your life is not working, or you find anybody's life is not working to that extent that he wants or she wants, you have to first check whether integrity is in or not. 90% chance is there that integrity is out. Integrity is out. Your life won't work to the extent you want. Bottom line, because integrity is not there. Very important. And most of us don't know what is integrity. We'll discuss that. We'll discuss that, all the distinctions of integrity, all the finer points of integrity. We don't know actually. हमें नहीं मालूम है, तो फिर एक्सपेक्ट करना भी गलत है. एंड मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल से पूछा, मैडम व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्रिटी? शी वाज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ सिंसियरिटी. Naturally, I was expecting that. Imagine what is happening in our education system. Now, what is the difference between integrity versus morality? Morality is ethically, going ethically. Okay. इंटीग्रिटी होना है तो एथिक्स या रूल्स फॉलो करके हो जरूरी नहीं है. इंटीग्रिटी Morality is set by society. Integrity is not about set by society. Integrity is your own self. You are a person of integrity. There, sometimes you have to break the moral codes of the system, parampara, tradition. Integrity में power है, समझ है, वो तोड़ देगा. When Gandhi said, सत्य और अहिंसा से मैं आजादी दिलाऊंगा, वो इंटेग्रिटी के आधार पे था, मोरालिटी के आधार पे नहीं था. Okay, so let me complete something which is pending. Is like you have heard something, right? How much have you heard? सुबह से हम लोग बहुत बोला है, कितना आपने सुना है? How much percentage? अजय, कितना परसेंट सुना? Yes. More than 70%. Okay. Nanendra? 100%. Oh my God. Jha साहब? 50% below. क्यों नहीं सुना? प्रश्न उठता है कि भाई जब हम लोग दोनों एकदम देख रहे हैं एक दूसरे के और कोई है नहीं, डिस्टर्बेंस हुई नहीं है बाहर से, तो फिर 100% से लेस होने का, जैसे 70%, 50% और सिमिलरली वेरियस रेशियो में परसेंटेज होगा. जैसे मोहन बाबू 100%. ओ बाबा, मनीष 70%, 60-70%. सो हम लोगों ने जब कहीं कहीं मतलब मेरे रिजर्वेशंस थे, फिर क्लियर हुए. राइट, But it required second time, third time, my questioning. and still it was 70%, right? अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कहीं कहीं ऐसा लगा कि मुझे तो ये मालूम है यार, छोड़ो ना, काय को शुरू है. हाँ, क्या यार ज्ञान दे रहा है यार, मालूम मतलब ये सब मेन चीज बता. मेन चीज बता. So there was something going on in our head. There was something going on in our head. हम लोग के अंदर कोई मशीन चल रहा था regularly, and the noise was so much, the inside noise, that it didn't allow us to listen. And therefore we have not heard whatever we have not heard.
right? And if I say the percentage can be as low as 10%, I may be on the right side. So much of the dissipation because of our internal noise, internal dialogue keeps on happening. So what is happening inside head? Internal voice. ये जो बोल रहे हैं ये सही है सही है या राइट है या रॉन्ग? एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ पढ़ के जाओ घाटा हो जाए। आए फायदा हुआ है कि इधर होता उधर ही होते ये नुकसान हो गया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ठीक है। टाइम पढ़ना था तो ठीक था, टाइप में क्या नहीं है, टाइम तो पढ़ना चाहिए, बनता है वही। यू नो यू आर सेइंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटेटर दिस दैट blah 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 should be, this should be there or not, it should not be there or here, something is wrong in me or something is wrong in other, whatever, दिन रात continuous चल रहा है, judgment, evaluation, justification, invalidation, everything is going on in the head, प्लस पेंडिंग काम तो जितना सारा था कुछ आपने निकाला, वो सब भी क्या होगा यार, किसी का होगा, अरे तो वो मेरे को फोन किया था उसका क्या होगा, तबीयत ठीक है कि नहीं है, वही वो मैं क्या हो गया, सारी चीज वाज इन द हेड। सो वेयर वी नीड टू लिसन, नो एक्चुअली वी आर नॉट प्रेजेंट टू लिसन, एंड देयरफॉर द परसेंटेज दैट यू माइट हैव रिसीव्ड माइट हैव बीन लेस दैन 100%, राइट, or equal to 100%, or equal to 100%, right? So these are some of the things you need to be present. We need to be present. That this internal dialogue is happening continuously. So how to overcome that? उस internal dialogue से बाहर निकलने का उपाय क्या है? Listening को improve करने का उपाय क्या है? Are you committed? Do you want to know? Do you want to be a great listener? हेलो, क्या आप एक कमाल के सुनने वाले बनना चाहते हैं? हेलो, उसके लिए उपाय है, पहला ये उपाय है कि जो अंदर में ये राइट रॉन्ग गुड बैड ट्रू फॉल्स एडवांटेज जजमेंट इवैल्यूएशन जो चल रहा है, तो ये भाई मैं समझ गया, तुम कर सकते हो, यू आर बेस्ट, यू नो यू कांट फाइट विथ योर माइंड, but you can say your mind. I know. You know, we need to understand, whatever you will try to fight, it will remain so. Resistance causes persistence. If you resist somebody, it will persist. If you resist the situation, it will persist. Suppose this noise is happening. If you are resisting it, तो disturb करता है। यार क्या हो रहा है? Acceptance causes disappearance. आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके ठीक है, पता चले कि अभी तक बाय द लास्ट हाफ एन आवर में तो नॉइज नहीं था, नहीं है, कैन यू सी दैट? वी एक्सेप्टेड इट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो इट डिसअपीयर्ड। समझ में आ रहा है? वो आवाज जो हमारा पार्ट ऑफ हिस्सा है तो वो डिस्टर्ब नहीं कर पाया। सो वन ऑफ द थिंग्स इफ यू लर्न इन योर लाइफ, एक्सेप्टेंस, इट्स ओके the way the things are, the way things are not, it's okay, it's okay, it disappears, it doesn't have power to control you. Like sir was yesterday, he was dealing with so many things, so mostly I am thinking, I'm sure he is applying that technology only, he was accepting, okay, ठीक है, okay, ठीक है, okay, ठीक है, and it disappeared. Today there is nothing. Just in acceptance, the things are happening. Are you getting? So, when you accept the way mind is working in the mind, now you can listen. अब आप सुन सकते। This is first technique. Second, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हम बहुत अच्छा सुन रहे हैं। The moment आपके माइंड में आया कि I am a great listener, you are gone.
द मोमेंट आया, यू आर फिनिश्ड। मोहन जी तस्वीर आज सुबह से क्या क्या हम लोगों ने सेशन में किया है, थोड़ा सा हम लोगों को रिव्यू करा दीजिए। 2-3 मिनट, 5 मिनट। सुबह से हम लोगों ने बेसिकली इंटीग्रिटी, पॉसिबिलिटी और कमिटमेंट पे बात किया। राइट, हेलो, कितना परसेंट इंटेक है? इट्स नॉट 100%, राइट? हाउ मच? According to give some rating. 40%. Yes, Suresh. 40-45%. झाजी 50% गया। राजू यस कितना परसेंट गया सर, मुझे 70-80% समझ में तो आया। आपको? अरे हम इनके बारे में पूछ रहे हैं। मोहन जी को कितना समझ में आया आपके हिसाब से? He's not able to explain the earlier part. He is remembering the last part. Can you see the bottom line? Bottom line. See, the bottom line is that you don't listen. Don't go through full stop, comma, and That we don't listen, including Mohan Babu. He is also not listening. So the second technique that we are talking, the moment you are confident that you are listening, you are not. So if you want to be a great listener, the technique number 2 is always remember this mantra. मैं न पहले कभी सुना था, न मैं अभी सुन रहा हूं, और यदि प्रभु की कृपा न रही तो शायद आगे भी सुनो। This humbleness will make you listener. So that is more important. In fact, most we don't know that we don't know about listening. हमें मालूम ही नहीं है कि लिसनिंग होता क्या है। So therefore, thinking about 100% or 80% or 70% or 50% is beyond question. Okay? Can we acknowledge Mohan Babu? Thank you. So friends, can I expect from now? क्या मैं अब आपसे ये आशा कर सकता हूँ